तुमसे किसने कहा कि मैं अकेला जा रहा हूँ? Who told you that I'm going alone? Who told you that I'm going alone? पूछोगी नहीं कि मैं किसके साथ जा रहा हूँ? पूछोगी नहीं तो won't you ask me? तुम मुझसे पूछोगी नहीं मैं किसके साथ जा रहा हूँ? Who I'm going with? Who I'm going with? Next sentences. जब आप किसी को अपना मान लेते हैं तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं. When you consider someone your dear one, you can do anything for them. When you consider someone your dear one, you can do anything for them. उसने मुझे एक दोस्त के तौर पर ही देखा और कहा भी कि मैं उसकी अच्छी दोस्त हूँ. He always liked me as a good friend. उसने मुझे good friend के तौर पे मुझे बस पसंद किया. And he said that I am his good friend. और उसने कहा भी कि मैं उसकी अच्छी दोस्त हूँ. पता नहीं मैं ये सब क्यों एक्सपेक्ट कर ली कि वो मुझसे प्यार करता है. मैं ये सब क्यों एक्सपेक्ट कर ली. I don't know why I expected all this. I don't know why I expected all this. मुझे रोना नहीं चाहिए. मुझे खुश होना चाहिए क्योंकि निशा मेरी छोटी बहन है. I shouldn't be crying. I should be happy because Nisha is my younger sister. I shouldn't be crying. मुझे रोना नहीं चाहिए. मुझे खुश होना चाहिए. I should be happy क्योंकि निशा मेरी छोटी बहन है. Because Nisha is my younger sister. Next sentence is राहुल जैसा अच्छा लड़का उससे इतना प्यार करता है. A good boy like Rahul loves her a lot. A good boy like Rahul loves her a lot. अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ. If she is happy, then I'm happy too. If she is happy, then I'm happy too. पता है वो मुझसे प्यार करती है लेकिन वो भाव खा रही है. एटीट्यूड दिखा रही है. मुझसे बोल नहीं रही है. पता है वो मुझसे प्यार करती है. मैं जानता हूँ वो मुझसे प्यार करती है. I know she loves me. लेकिन वो भाव खा रही है. एटीट्यूड दिखा रही है. But she is showing attitude. और मुझसे बोल नहीं रही है. And is not telling me, or we can say and she is not telling me. I know she loves me, but she is showing attitude and is not telling me. Next sentence is मैं बाहर जा रहा हूँ. आपको कहीं ड्रॉप कर दूँ? I'm going out. Shall I drop you somewhere? I'm going out. Shall I drop you somewhere? Next sentence is वो चुपचाप खड़ी थी. उसने कुछ नहीं कहा. She was standing quietly. वो चुपचाप खड़ी थी. उसने कुछ नहीं कहा. She didn't say anything. She was standing quietly. She didn't say anything. मैं उसकी मदद करना चाहती थी. मैं उसकी हेल्प करना चाहती थी. एक बार भी उसने मुझसे नहीं पूछा नहीं. I wanted to help her. She didn't ask me even once. I wanted to help her. मैं उसकी हेल्प करना चाहती थी. उसने मुझसे एक बार भी पूछा नहीं. She didn't ask me even once. मुझे देखो कैसी हालत है मेरी. Look at me, what state am I in? Look at me, what state am I in? Next sentence is तुम्हें शर्म आनी चाहिए. या फिर अगर ये कहना हो कि लानत है तुम्हारी ज़िंदगी पर. Shame on you, तुम्हें शर्म आनी चाहिए. या फिर लानत है तुम्हारी ज़िंदगी पर. इसके लिए इंग्लिश बोलेंगे shame on you या फिर shame on your life. तुमने मुझे दोस्त कहा मगर तुम मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो. You called me your friend. तुमने मुझे दोस्त कहा, दोस्त बुलाया, मगर तुम मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो. But you are not worthy of my friendship. या फिर मगर तुम मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो. इस बात को हम कह सकते हैं But you don't deserve my friendship. पर तुम मेरी दोस्ती डिज़र्व नहीं करते. But you don't deserve my friendship. आपने मेरी जान बचाई है, ऐसे थोड़ी जाने देंगे. You have saved my life. I won't let you go like this. You have saved my life. I won't let you go like this. Next sentence is मैं यहाँ सोऊंगा. I'll sleep here. मैं यहाँ सोऊंगा. I'll sleep here. यहाँ नहीं मेरे दोस्त. मैं तुम्हें इससे भी ऊंची बिस्तर पर सुलाऊंगा.
Not here, my friend. I'll make you sleep on a higher bed than this. Not here, my friend. I'll make you sleep on a higher bed than this. तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है. My life is incomplete without you. My life is incomplete without you. कौन गिरा या कौन गिर गया? Who fell down? Who fell down? मैं नीचे गिर गया या फिर मैं गिरा? I fell down. I fell down. मैं समझा मैं गिरा. I thought it was me. I thought it was me. नहीं, आप कैसे गिर सकते हैं? No, how can you fall? सीटी क्यों बजा रहे हो? Why are you whistling? Why are you whistling? कोई दूसरा तरीका नहीं है मुझे बुलाने का? Is there no other way to call me? Is there no other way to call me? Next sentences. मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं. It's difficult but not impossible. It's difficult but not impossible. नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर तुम्हारे पापा ने इनकार कर दिया तो, अगर तुम्हारे पापा नहीं माने तो, व्हाट इफ़ योर फादर रिफ्यूजेस? व्हाट इफ़ योर फादर रिफ्यूजेस? क्या तुम इसके लिए मिठाई नहीं लाओगी? क्या तुम इसका मुंह मीठा नहीं करोगी? वॉन्ट यू गेट स्वीट्स फॉर हिम? वॉन्ट यू गेट स्वीट्स फॉर हिम? इस दुनिया में दौलत पैदा करना बहुत आसान है, मगर किसी के दिल में जगह बनाना बहुत मुश्किल है. इसके इंग्लिश, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, इट्स वेरी ईजी टू मेक मनी. पैसे पैसे कमाना या पैसे बनाना बहुत ईजी है, बट इट्स डिफ़िकल्ट टू मेक प्लेस इन समवंस हार्ट. लेकिन किसी के दिल में जगह बनाना बहुत मुश्किल है. जो मैंने चाहा वो मुझे मिला नहीं, और जो आपने दिया वो मेरा रहा नहीं. आई डिडंट गेट व्हाट आई डिज़ायर्ड. जो मैंने चाहा वो मुझे मिला नहीं, जो मेरी डिज़ायर थी वो मुझे मिला नहीं. एंड व्हाट यू गेव मी, और जो आपने मुझे दिया वो मेरा रहा नहीं. इज़ नो मोर माइन. उसने जो कुछ भी किया उसकी मर्ज़ी नहीं थी, उसकी मजबूरी थी. वॉट एवर शी डिड वॉज नॉट विलिंग. विलिंग मीन्स इच्छा मर्जी, बट हर हेल्पलेसनेस. या फिर इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, वॉट एवर शी डिड वॉज नॉट हर विश, इट वॉज हर कंपल्शन. उसने जो कुछ भी किया वो उसकी विश नहीं थी, उसकी मर्जी नहीं थी, वो इसका क्या था? कंपल्शन, उसकी मजबूरी थी. 3 साल मैंने उस लम्हे का इंतज़ार किया, उस मोमेंट का इंतज़ार किया. आई वेटेड 3 years फॉर दैट मोमेंट. आई वेटेड 3 years फॉर दैट मोमेंट. उस एक लम्हे का इंतज़ार. अ वेट फॉर दैट वन मोमेंट. अ वेट फॉर दैट वन मोमेंट. मैं हर चीज़ से आगे खुद को रखना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू कीप माई सेल्फ अहेड ऑफ एवरी थिंग. आई वॉन्ट टू कीप माई सेल्फ अहेड ऑफ एवरी थिंग. तुमसे भी ज़्यादा, मतलब मैं हर चीज़ से ज़्यादा खुद को रखना चाहती हूँ, तुमसे भी ज़्यादा. इवन मोर दैन यू. इवन मोर दैन यू. तो मुझे जाने दो, लेट मी गो. अब समय आ गया है कि मैं अपने लिए एक नया सपना देखूं. नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू हैव अ न्यू ड्रीम फॉर माई सेल्फ. नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू हैव अ न्यू ड्रीम फॉर माई सेल्फ. मुझे तो नींद आ रही है, तुम राहुल को खाना खिला देना और उससे कहना कि आज रात यहीं रुक जाए. आई फील स्लीपी, यू सर्व फूड फॉर राहुल and tell him to stay here tonight. I feel sleepy, मुझे तो नींद आ रही है. You serve food for राहुल, तुम राहुल को सर्व कर देना फूड. And tell him to stay here tonight, और उससे कहना कि आज रात यहीं रुक जाए. नेक्स्ट सेंटेंस है, गेस्ट रूम खुलवा देना, उसे अकेला मत छोड़ना. गेट द गेस्ट रूम ओपन्ड, डोंट लीव हिम अलोन. गेट द गेस्ट रूम ओपन्ड, डोंट लीव हिम अलोन. कुछ बोल नहीं रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं ठीक हूँ. मतलब मैं बहुत टेंशन में हूँ, कुछ बोल नहीं रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ठीक हूँ. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग दैट डजंट मीन आई एम ओके. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग दैट डजंट मीन आई एम ओके. मैं ठीक नहीं हूँ, ठीक है. आई एम नॉट ओके, ऑल राइट. आई एम नॉट ओके, ऑल राइट. मैं सिर्फ अपने आप पर और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ, फोकस करना चाहती हूँ, ध्यान लगाना चाहती हूँ. आई जस्ट वॉन्ट टू फोकस ऑन माई सेल्फ एंड माई वर्क. आई जस्ट वॉन्ट टू फोकस ऑन माई सेल्फ एंड माई वर्क. वो चला गया है, वो जा चुका है, चला गया है. कई बार उसका नंबर डायल की पर स्विच ऑफ आ रहा है. इसे इंग्लिश में, ही हैज़ लेफ्ट.
I dialed his number many times but it's coming switched off. He has left. I dialed his number many times but it's coming switched off. मुझे जाना है, क्या आप मेरे लिए टैक्सी बुला सकते हैं, कैब कर सकते हैं? आई हैव टू गो, कैन यू कॉल फॉर अ कैब फॉर मी? आई हैव टू गो, मुझे जाना है, कैन यू कॉल फॉर अ कैब फॉर मी? ठीक है, मेरा ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप कर देगा, छोड़ देगा। ओके माई ड्राइवर विल ड्रॉप यू। ओके माई ड्राइवर विल ड्रॉप यू। तुम बिना बताए चले आए। यू लेफ्ट विदाउट इन्फॉर्मिंग। यू लेफ्ट विदाउट इन्फॉर्मिंग, तुम बिना बताए चले आए। और तुम, पार्टी खत्म हो गई तुम्हारी। एंड यू, इज योर पार्टी ओवर? और तुम, पार्टी खत्म हो गई क्या तुम्हारी? एंड यू, इज योर पार्टी ओवर? नहीं, अभी भी चल रही है, पर मैं चली आई। नो इट्स स्टिल गोइंग ऑन बट आई लेफ्ट। नो इट्स स्टिल गोइंग ऑन बट आई लेफ्ट। मैंने उससे ये सब इसलिए कहा क्योंकि मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ। इसे इंग्लिश में, आई टोल्ड हर ऑल दिस बिकॉज आई लव हर अ लॉट। आई टोल्ड हर ऑल दिस बिकॉज आई लव हर अ लॉट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे फिर से छोड़कर चली जाए। आई डोंट वॉन्ट हर टू लीव मी एंड गो अवे अगेन। आई डोंट वॉन्ट हर टू लीव मी एंड गो अवे अगेन। मैं नहीं रह सकता उससे दूर। आई कैंट लीव अवे फ्रॉम हर। आई कैंट लीव अवे फ्रॉम हर। अगर वो यहाँ रहकर काम करना चाहती है तो सही है, तो होने देते हैं, तो रहने देते हैं, तो ठीक है। इफ़ शी वॉन्ट्स टू स्टे हियर एंड वर्क सो बी इट। इफ़ शी वॉन्ट्स टू स्टे हियर एंड वर्क सो बी इट। मेरा मतलब मुश्किल होगी लेकिन मैं संभाल लूँगा, मैं हैंडल कर लूँगा। आई मीन इट विल बी डिफ़िकल्ट बट आई विल हैंडल इट। आई मीन इट विल बी डिफ़िकल्ट बट आई विल हैंडल इट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने एक शेर सुना है, मैंने एक पोएम सुना है, लिख लो अपनी जहन में, अपने माइंड में, अपने दिमाग में। आई हैव हर्ड अ पोएम, राइट इट इन योर माइंड। आई हैव हर्ड अ पोएम, राइट इट इन योर माइंड। जिंदगी हर मोड़ पर एक नया सवाल खड़ा कर देती है, जवाब मिलने पर सवाल बदल देती है। लाइफ पुट्स अप अ न्यू क्वेश्चन एट एवरी टर्न, when the answer is found the question is changed. Life puts up a new question at every turn, when the answer is found the question is changed. नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि जहाँ तक मुझे याद है तुम कभी मजाकिया नहीं थे, तुम कभी फनी नहीं थे, मजाक नहीं करते थे। एज फार एज आई रिमेंबर यू वर नेवर फनी। एज फार एज आई रिमेंबर यू वर नेवर फनी। राहुल के लिए गेस्ट रूम तैयार कर दो। गेट द गेस्ट रूम रेडी फॉर राहुल। गेट द गेस्ट रूम रेडी फॉर राहुल। और ये रख देना वहाँ, और वो रिया के कमरे में रख देना। एंड कीप दिस देयर एंड दोज इन रियाज रूम, जैसे कोई फ्लावर वगैरह कुछ भी। एंड कीप दिस देयर एंड दोज इन रियाज रूम, और वो रख देना रिया के रूम में। माँ, राहुल ने आपको फ़ोन किया था। इसे इंग्लिश में, मॉम डिड राहुल कॉल यू? क्या राहुल ने आपको कॉल किया? मॉम डिड राहुल कॉल यू? बोला कि वो आ रहा है यहाँ। इसे इंग्लिश में, डिड ही से ही इज़ कमिंग हियर? डिड ही से ही इज़ कमिंग हियर? तो रिप्लाई में अगर कोई कहता है ना, जैसे कि आपने मुझसे पूछा ही नहीं, यू डिडंट इवन आस्क मी। आपने मुझसे पूछा तक नहीं, पूछा भी नहीं, पूछा ही नहीं, यू डिडंट इवन आस्क मी। इसमें पूछने वाली क्या बात है? वो वहाँ खाली घर में थोड़ी ना रहेगा। वॉट इज़ देयर टू आस्क इन दिस? ही वॉन्ट टू स्टे देयर इन एन एम्प्टी हाउस। व्हाट्स देयर टू आस्क इन दिस? इसमें पूछने वाली क्या बात है? वो वहाँ खाली घर में थोड़ी ना रहेगा। ही वॉन्ट स्टे देयर इन एन एम्प्टी हाउस। कहाँ हो तुम? कितने फ़ोन किए मैंने तुम्हें लैंडलाइन से। वेयर आर यू? आई कॉल यू सेवरल टाइम्स फ्रॉम द लैंडलाइन। वेयर आर यू? आई कॉल यू सेवरल टाइम्स फ्रॉम द लैंडलाइन। तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? वाई डिडंट यू पिक अप योर फ़ोन? वाई डिडंट यू पिक अप योर फ़ोन? सच में? मैं भी कितनी बार फ़ोन की। तुमने कॉल्स चेक किए? रियली? इवन आई कॉल यू सेवरल टाइम्स, डिड यू चेक योर कॉल्स? रियली? इवन आई कॉल्ड यू सेवरल टाइम्स, डिड यू चेक योर कॉल्स? क्या तुमने अपने कॉल्स चेक किए? पता है, अभी देखा मैंने। हाँ, मैंने चेक किया। पता है, अभी देखा मैंने। आई नो, आई सॉ देम जस्ट नाउ। आई नो, आई सॉ देम जस्ट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये अजीब लगेगा लेकिन फ़नी लगेगा, लेकिन फ़ोन गुम हो गया था, अभी मिला मुझे।
इसे इंग्लिश में बोलेंगे, दिस इज़ गोइंग टू साउंड फनी बट माई फ़ोन वॉज मिसप्लेस्ड, आई जस्ट फाउंड इट। दिस इज़ गोइंग टू साउंड फनी बट माई फ़ोन वॉज मिसप्लेस्ड, आई जस्ट फाउंड इट। तुम्हें ये अजीब लगेगा कि मैं अपनी फ़ोन तक नहीं संभाल सकता, नहीं संभाल पाता, फ़ोन गुम हो जाती है मुझसे। दिस इज़ गोइंग टू साउंड फनी, ये तुम्हें अजीब लगेगा, बट माई फ़ोन वॉज मिसप्लेस्ड, आई जस्ट फाउंड इट। मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें लैंडलाइन से कॉल कर रहा था। I didn't have my phone with me. That's why I was calling you from the landline. I didn't have my phone with me. That's why I was calling you from the landline. नेक्स्ट सेंटेंस है, आपकी ज़िंदगी तो रिया है ना, उनके बारे में कुछ कहिए। मतलब फ़ोन वोन की बात छोड़िए, रिया के बारे में कुछ कहिए। योर लाइफ इज़ रिया, राइट? स्पीक समथिंग अबाउट हर। योर लाइफ इज़ रिया, राइट? स्पीक समथिंग अबाउट हर। रिया के बारे में मैं क्या कहूँ? वॉट शैल आई से अबाउट रिया? वॉट शैल आई से अबाउट रिया? रिया के बारे में मैं क्या कहूँ? मैं तो बस थैंक यू ही बोल सकता हूँ। आई कैन ओनली से थैंक यू। आई कैन ओनली से थैंक यू। मैं तो बस थैंक यू ही बोल सकता हूँ। अगला सेंटेंस है, और जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया है उसके लिए धन्यवाद देने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं है, वर्ड्स काफ़ी नहीं है। एंड फॉर वॉट एवर यू हैव डन फॉर मी, वर्ड्स आर नॉट इनफ टू थैंक यू। एंड फॉर वॉट एवर यू हैव डन फॉर मी, और जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया है, वर्ड्स आर नॉट इनफ टू थैंक यू। वर्ड्स काफ़ी नहीं है थैंक यू के लिए। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं सचमुच बोर हो रही थी। इट्स गुड दैट यू केम, आई वॉज रियली गेटिंग बोर्ड। इट्स गुड दैट यू केम, आई वॉज रियली गेटिंग बोर्ड। वो शादी कर रही है मुझसे अब। मुझसे सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे। मुझे जो करना चाहिए था मैंने किया। शी इज़ गेटिंग मैरिड, एवरी वन वॉज एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम मी, आई डिड वॉट आई वॉज सपोज टू। शी इज़ गेटिंग मैरिड, वो शादी कर रही है। मुझसे सब उम्मीद कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे। आई एवरी वन वॉज एक्सपेक्टिंग दैट फॉर मी, आई डिड वॉट आई वॉज सपोज टू। पता है समझती हूँ मैं, पर फिर भी बुरा तो लगता है ना। सह नहीं पाई मैं। तुमने जो स्पीच दी, तुमने जो कहा, वो मुझे बुरा लगा, मैं सह नहीं पाई। आई नो आई अंडरस्टैंड बट इट इज स्टिल फील्स बैड, आई couldn't tolerate दैट। आई नो आई अंडरस्टैंड बट इट इज स्टिल फील्स बैड, आई couldn't tolerate दैट। मैं सह नहीं पाई उसे। सच में ऐसा लगता है जैसे कुछ कमी है, जैसे कुछ मिसिंग है। रियली इट फील्स लाइक समथिंग इज मिसिंग। रियली इट फील्स लाइक समथिंग इज मिसिंग। कहाँ चले गए तुम? इसे इंग्लिश में, वेयर हैव यू गॉन? कहाँ चले गए तुम? वेयर हैव यू गॉन? जा रहा हूँ कुछ ज़रूरी काम से, जा रहा हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क से। तो आई एम गोइंग फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क। आई एम गोइंग फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क। अगर कोई तुम्हारे बारे में पूछे तो मैं क्या जवाब दूँ? मगर अगर तुम तो यहाँ से जा रहे हो, चले गए, तो अगर कोई तुम्हारे बारे में पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगा? वट शैल आई आंसर इफ़ समवन आस्क्स फॉर यू? वट शैल आई आंसर इफ़ समवन आस्क्स फॉर यू? संभाल लेना ना, तो तुम्हारा जो दिल करे कह देना। तो मैनेज कर लेना, मैनेज इट फॉर मी, से वॉट एवर यू फील लाइक। मैनेज इट फॉर मी, से वॉट एवर यू फील लाइक। कहाँ जा रहे हैं हम? तो वे आर वी गोइंग? वे आर वी गोइंग, बताओ कहाँ जा रहे हैं हम? तो शादी करने, टू गेट मैरिड। शादी करने, टू गेट मैरिड। शादी, तुम पागल हो गए हो क्या? मतलब ना कुछ टाइम देखा, ना मुहूर्त, ना लोगों को इनवाइट, तो तुम पागल हो गए हो क्या? मैरिज, हैव यू गॉन मैड? हाँ पागल हो गया हूँ मैं तुम्हारे प्यार में, तुम्हें पाने के लिए पागल हूँ मैं। इसे इंग्लिश में, यस आई हैव गॉन मैड इन योर लव, आई एम क्रेजी अबाउट हैविंग यू इन माई लाइफ। यस आई हैव गॉन मैड इन योर लव, आई एम क्रेजी अबाउट हैविंग यू इन माई लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे। मुझे आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे। आई शुडंट हैव कम हियर। आई शुडंट हैव कम हियर। कहाँ थे तुम? तुम्हारे कपड़े यहाँ हैं, लड़के वाले आ गए हैं। इस इंग्लिश में, वेयर वर यू? योर क्लॉथ्स आर हियर, द ग्रूम्स फैमिली हैज़ अराइव्ड। लड़के वाले, दूल्हे की फैमिली, द ग्रूम्स फैमिली हैज़ अराइव्ड। लड़के वाले आ चुके हैं, आ गए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, शादी का घर है तो वेडिंग सेरेमनी है, यहाँ हमें हमें यहाँ हर समय तुम्हारी ज़रूरत है। इट्स अ वेडिंग सेरेमनी, वी नीड यू ऑल द टाइम हियर। इट्स अ वेडिंग सेरेमनी, वी नीड यू ऑल द टाइम हियर। ये बटन है, इन्हें मत भूलना। दीज आर द बटन्स, डोंट फॉरगेट देम। मतलब बटन लगा के आना, लगा लेना। दीज आर द बटन्स, डोंट फॉरगेट देम। क्या हुआ? देख क्या रहे हो?
तैयार होना है, लेट हो रहा है, तो क्या हुआ, ये बटन पकड़ो, इन्हें पहनना मत भूलना, ठीक है? व्हाट हैपन, टेक दिस बटन्स, डोंट फॉरगेट टू वेयर देम, ओके? व्हाट हैपन, टेक दिस बटन्स, डोंट फॉरगेट टू वेयर देम, ओके? एक बार भी उसने मुझसे नहीं पूछा, आज तक इतना ईगो। शी डिडंट आस्क मी इवन वंस, सो मच ईगो टिल टुडे। शी डिडंट आस्क मी इवन वंस, एक बार भी उसने मुझसे नहीं पूछा, आज तक इतना ईगो, सो मच ईगो टिल टुडे। मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें आना पड़ेगा, आना होगा। आई एम गेटिंग लेट, आई एम लीविंग बट यू हैव टू कम। आई एम गेटिंग लेट, मैं लेट हो रही हूँ। आई एम लीविंग, मैं जा रही हूँ, बट यू हैव टू कम, लेकिन तुम्हें आना होगा, आना पड़ेगा। कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। It's said that there is a woman behind every successful man. It's said, कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। There is a woman behind every successful man. लेकिन आपके पति के मामले में वे दो हैं, मतलब एक औरत ही नहीं बल्कि कोई दो हैं। But in your husband's case there are two. But in your husband's case there are two. हम सभी इस सफलता की कहानी की शुरुआत के बारे में जानना चाहेंगे। We would all like to know about the beginning of this success story. We would all like to know about the beginning of this success story. Next sentences. मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद है। I still remember that day clearly. Clearly or we can say very well. बहुत अच्छे से very well. I still remember that day clearly. मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो एक तूफानी रात थी, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। It was a stormy night. I was feeling too much pain. It was a stormy night. I was feeling too much pain. मैं उनसे बहुत नाराज़ थी, मैं उससे बहुत नाराज़ थी, पर फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पाई। I was very upset with her, but still I couldn't stop myself. I was very upset with her, but still I couldn't stop myself. हम समय पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। We will never be able to reach on time. We will never be able to reach on time. हम टाइम पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे, हमें कैसे भी करके पहुंचना पड़ेगा। We will have to reach somehow. We will have to reach somehow. Next sentences. पता है मैंने गलती की थी, इसलिए कभी माफ़ी मांगने की हिम्मत भी नहीं हुई। I know I made a mistake. That's why I never dared to apologize. I know I made a mistake. पता है मैंने गलती की थी। That's why, इसीलिए I never dared to apologize. कभी माफ़ी मांगने की हिम्मत भी नहीं हुई, या फिर कभी माफ़ी मांगने की हिम्मत भी नहीं हुई, इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं। That's why, इसलिए I never had the courage to apologize. अगर तुम जीत गए तो मेरा जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हारा हो जाएगा। If you win, then whatever you want from me, तुम जो कुछ भी मुझसे चाहते हो will be yours, तुम्हारा होगा, हो जाएगा। If you win, then whatever you want from me will be yours. Next sentences. वो क्या है ना, दरअसल आपके पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो मुझे पसंद हो। Actually, you don't have anything. Actually, you have nothing that I like. Actually, you don't have anything that I like. वो क्या है ना कि आपके पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो मुझे पसंद हो। Next sentences. मुझे थोड़ा और सोने दो। Let me sleep some more. Let me sleep some more. जैसा कि तुम्हारे पापा कहते हैं, जो सोता है वो खोता है। As your papa says, one who sleeps is a loser. As your papa says, one who sleeps is a loser. ये तुमने अपने आप को क्या कर लिया है, तुमने अपना हुलिया कैसा बना रखा है। What have you done to yourself? What have you done to yourself? ये तुमने क्या कर लिया है अपने साथ, ये तुमने क्या कर रखा है। नेक्स्ट सेंटेंसेस. तुम पहले भी अच्छी थी और ये भी अच्छा है. You were nice earlier and this is also okay. You were nice earlier and this is also okay.
तुम्हारा ये राज मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आई वॉन्ट रिवील दिस सीक्रेट ऑफ योर्स टू एनी वन। आई वॉन्ट रिवील दिस सीक्रेट ऑफ योर्स टू एनी वन। मुझे तुमने उल्लू समझ रखा है, या फिर क्या तुमने मुझे इडियट समझ रखा है, उल्लू बेवकूफ़ समझ रखा है? डू यू थिंक आई एम एन इडियट? डू यू थिंक आई एम एन इडियट? तमाशा कर दूंगी। I'll create a scene। तमाशा कर दूंगी। I'll create a scene। डर गई? ठीक है, नहीं बताऊंगी तुम्हारा ये राज, मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। Scared? डर गई? ओके, आई वॉन्ट डिस्क्लोज। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, इसे राजी रखूंगी। आई वॉन्ट डिस्क्लोज। तुम लोगों ने भी हद कर दी आज। यू गाइज क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स टुडे। आज तुम लोगों ने सारी लिमिट क्रॉस कर दी। यू गाइज क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स टुडे। मत रो, किसी से मत डरो। डोंट क्राई, डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनी वन। मत रो, किसी से मत डरो। डोंट क्राई, डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनी वन। इस घर को बचाने का और कोई रास्ता नहीं था और कोई ज़रिया नहीं था। देयर वॉज नो अदर वे टू सेव दिस हाउस। देयर वॉज नो अदर वे टू सेव दिस हाउस। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने कोई गुनाह नहीं किया है। You don't need to be ashamed. You haven't committed any crime. तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। You don't need to be ashamed. तुमने कोई गुनाह नहीं किया है। You haven't committed any crime. और ना ही मैंने तुम्हें कभी गुनहगार समझा है। And neither I have ever considered you guilty. And neither I have ever considered you guilty. तुम इसके अलावा कुछ और भी करते हो क्या? डू यू डू एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस? डू यू डू एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस? अपार्ट फ्रॉम दिस का मतलब होता है इसके अलावा। कितना समय लगेगा? हाउ मच टाइम विल इट टेक? हाउ मच टाइम विल इट टेक, इसमें कितना समय लगेगा? इसमें एक दिन का समय लगेगा या लग जाएगा। इट विल टेक अ डेज टाइम। इट विल टेक अ डेज टाइम। ये है मेरा घर, काफ़ी पुराना है। दिस इज़ माई हाउस, इट्स क्वाइट ओल्ड। दिस इज़ माई हाउस, ये काफ़ी पुराना है। इट्स क्वाइट ओल्ड। पुराने से याद आया, ये है मेरी दादी। आई रिमेंबर्ड दिस फ्रॉम ओल्ड। दिस इज़ माई ग्रैंड माँ, और वी कैन से दिस इज़ माई ग्रैंड मदर। आई रिमेंबर्ड दिस फ्रॉम ओल्ड। दिस इज़ माई ग्रैंड मदर। पहले ब्यूटी पार्लर चलाती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया पर ब्लॉगिंग करती हैं। अर्लियर शी यूज्ड टू रन अ ब्यूटी पार्लर बट नाउ शी इज़ ब्लॉगिंग ऑन सोशल मीडिया। अर्लियर शी यूज्ड टू रन अ ब्यूटी पार्लर बट नाउ शी इज़ ब्लॉगिंग ऑन सोशल मीडिया। आज फिर से कॉल किए बिना सोने वाले थे ना? वर यू गोइंग टू स्लीप विदाउट कॉलिंग अगेन टुडे? वर यू गोइंग टू स्लीप विदाउट कॉलिंग अगेन टुडे? नहीं, मतलब मैं अभी तुम्हें कॉल ही करने वाला था, मैं अभी तुम्हें कॉल करने वाला था। नो, आई मीन आई वॉज जस्ट गोइंग टू कॉल यू। नो, आई मीन आई वॉज जस्ट गोइंग टू कॉल यू। क्या कर रहे हो अभी? वॉट आर यू डूइंग राइट नाउ? वॉट आर यू डूइंग राइट नाउ? फ़िलहाल तो किसी से डांट खा रहा हूँ। राइट नाउ आई एम गेटिंग स्कोल्डेड बाय समवन। राइट नाउ आई एम गेटिंग स्कोल्डेड बाय समवन। फ़िलहाल को इंग्लिश में या तो राइट नाउ बोलेंगे या फिर बोलेंगे एज ऑफ नाउ। अब ना मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। नाउ आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी। अब मैं सो रहा हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप, या फिर नाउ आई एम, मैं सोने जा रहा हूँ या सो रहा हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप। मैं पुलिस वाला हूँ, सबकी खबर रखनी पड़ती है। आई एम अ पुलिस मैन। आई हैव टू कीप ट्रैक ऑफ एवरीथिंग। आई एम अ पुलिस मैन। आई हैव टू कीप ट्रैक ऑफ एवरीथिंग। ये हिल हिल क्यों रहा है? भूकंप आया है क्या? वाई इज़ ही शेकिंग? ये मूव क्यों कर रहा है, हिल क्यों रहा है? भूकंप आया है क्या? हैज़ देयर बीन एन अर्थक्वेक? हैज़ देयर बीन एन अर्थक्वेक? मैं फ़ाइल ले जाऊँ? नहीं नहीं, आप रखिए। शुड आई टेक द फाइल? क्या मैं फ़ाइल ले जाऊँ या मुझे ले जाना चाहिए? नो नो, यू कीप इट। नहीं नहीं, आप रखिए। तुम्हें लगता है मैं हत्या कर सकता हूँ, मैं मर्डर कर सकता हूँ? डू यू थिंक आई कैन कमिट मर्डर?
जिस तरह कमिट सुसाइड बोलते हैं सुसाइड करना, तो कमिट मर्डर किसी की मर्डर करना। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। Nowadays there is no trust in anyone. Nowadays there is no trust in anyone. मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया, मैंने उसे टच तक नहीं किया, छुआ तक नहीं। मैं बेवजह इस चक्कर में फंस गया हूँ। I didn't even touch her. I have unnecessarily trapped in this case. I didn't even touch her. I have unnecessarily trapped in this case. जैसे कोई खत या किताब पढ़ना हो, मैं पढ़ूँ? Shall I read it? Shall I read it? तुमने पढ़ लिया है क्या? Have you read it? Have you read it? मैंने तो खोला भी नहीं है। I haven't even opened it. I haven't even opened it. खोलूँ? Shall I open it? Shall I open it? मैं शाम को घर पे आकर पढ़ लूँगा, तुम्हें खोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं शाम को घर पर आकर पढ़ लूँगा। I'll come home in the evening and read it. I'll come home in the evening and read it. मैं शाम को घर पर आकर पढ़ लूँगा। नेक्स्ट सेंटेंसेस। वो कभी नहीं चाहती थी कि तुम्हें इस बच्चे के बारे में मालूम पड़े, पता चले। She never wanted you to know about this child. She never wanted you to know about this child. लेकिन मरने से पहले तुम्हारे बेटे को तुम्हारे पास भेज देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत अब ख़राब रहती है। Before I die, I want to send your son to you. Before I die, I want to send your son to you. उठो, कपड़े नहीं बदलोगे क्या? Get up, won't you change your clothes? Get up, won't you change your clothes? कपड़े नहीं बदलोगे क्या? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। I want to tell you something, you won't like it. I want to tell you something, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। You won't like it. रहने दो, फिर कभी बता दूँगा। Let it be, I'll tell you some other time. Let it be, रहने दो, फिर कभी बता दूँगा। I'll tell you some other time. मुझे उसका फ़ोन नंबर दे दो। Give me his phone number. Give me his phone number. उनके पास फ़ोन नहीं है या उसके पास फ़ोन नहीं है। He doesn't have a phone. He doesn't have a phone. ऐसी बातों पर मजाक नहीं करते। Don't joke about such matters. Don't joke about such matters. जब कोई कहता है ना कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो I am not joking. I am not joking. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। You don't need to go anywhere. You don't need to go anywhere. आज रोककर क्या फ़ायदा, या आज रोकने का क्या फ़ायदा? रोकना तो उस दिन चाहिए था। What's the use of stopping me now? You should have stopped me that day. What's the use of stopping me now? You should have stopped me that day. बस मुझे थोड़ा समय दो, थोड़ा टाइम दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। Just give me some time. I'll set everything right. और we can say मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। I'll fix everything. Next sentences. पता है शक की कोई दवाई नहीं है, या फिर शक का कोई इलाज नहीं है। You know there is no cure for suspicion. Cure means दवाई भी होता है और इलाज भी होता है, और suspicion या फिर डाउट या suspicion दोनों का मतलब होता है शक। You know there is no cure for suspicion. मैं खुद सपने नहीं देखता, पर औरों के सपने ज़रूर पूरे करता हूँ। I don't have dreams of my own, but I do fulfill dreams others have. और we can say I don't dream for myself. मेरे लिए खुद के मेरे कोई ड्रीम नहीं है, बट आई डेफिनेटली फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ अदर्स। लेकिन मैं ज़रूर पूरी करता हूँ दूसरों की ड्रीम्स। मैं समझी नहीं। आई डिडंट गेट यू। आई डिडंट गेट यू। मैं समझी नहीं। अगर तुम मुझे समझाने का मौका दोगी तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम आसमान छू लोगी। इफ़ यू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन, देन I guarantee you that you will touch the sky. If you give me an opportunity, or we can say chance, to explain, then I guarantee you that you will touch the sky.
नेक्स्ट सेंटेंसेस। आसमान मैंने तुम्हें दे दिया है, अब चमकने की बारी तुम्हारी है। I have provided you the sky, or we can say I have given you the sky. Now it's your turn to shine. अब चमकने की बारी तुम्हारी है. Now it's your turn to shine. मैंने तो सिर्फ तुमसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था, लेकिन उस वादे को पूरा करने में मदद की तुम्हारे हुनर ने और तुम्हारी खूबसूरती ने. I just made you a promise, but your talent and beauty helped fulfill that promise. I just made you a promise, but your talent and beauty helped fulfill that promise. मैं भी वादा करती हूँ, एक ना एक दिन या फिर एक दिन तुमने जो कुछ किया है मैं तुम्हें चुका दूंगी. I too make you a promise. One day I'll repay you for all you have done. I too make you a promise. One day I'll repay you for all you have done. Next sentences. अब अगर ये कहना हो कि उसकी इस मेहरबानी की वजह क्या है. What's the reason for his kindness? काइंडनेस की जगह हम फेवर भी कह सकते हैं. उसके इस एहसान की वजह क्या है. व्हाट्स द रीज़न फॉर हिज काइंडनेस. व्हाट्स द रीज़न फॉर हिज फेवर. उसका प्रदर्शन, उसका परफॉर्मेंस एक चमत्कार से कम नहीं था. हिज परफॉर्मेंस वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल. हिज परफॉर्मेंस वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल. नथिंग शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है से कम नहीं. नेक्स्ट सेंटेंसेस. ये फिल्म एक मास्टरपीस से कम नहीं है. This movie is nothing short of a masterpiece. This movie is nothing short of a masterpiece. उसकी मेहनत, प्रेरणा, इंस्पिरेशन से कम नहीं है. His hard work is nothing short of inspiration. आप अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार मत समझिए. You don't consider yourself to be responsible for it. You don't consider yourself to be responsible for it. जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो होकर रहेगा. वॉट एवर इज रिटन इन वंस डेस्टिनी इन वंस फेट इट विल डेफिनेटली हैपन. वॉट एवर इज रिटन इन वंस डेस्टिनी इट विल डेफिनेटली हैपन. आप वहाँ कैसे लटक गए. जैसे कोई खाई में आप वहाँ कैसे लटक गए. हाउ डिड यू हैंग ओवर देयर. हाउ डिड यू हैंग ओवर देयर. अरे मैं अपनी मर्जी से थोड़ी लटकाऊं. Hey, I'm not hanging over here with my wish. Hey, I'm not hanging over here with my wish. Next sentences. अब अगर ये कहना हो कि मैं आपको अपना हाथ देता हूँ, अपना हाथ दूंगा, आप मेरा हाथ पकड़िए और ऊपर आइए. I'll give you my hand, you hold my hand and come up. I'll give you my hand, you hold my hand and come up. अगर ये कहना हो कि अरे अगर मेरा हाथ ऊपर पहुंच पाता तो मैं खुद ऊपर नहीं आता क्या. Hey, if my hand could come up, then wouldn't I come up myself? Hey, if my hand could come up, then wouldn't I come up myself? अगर मेरा हाथ ऊपर पहुंच पाता तो मैं खुद ऊपर नहीं आ जाता क्या. आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा नीचे आ जाइए. You do one thing, you please come a little down. You do one thing, you please come a little down. नेक्स्ट सेंटेंस है. अरे भाई साहब आप अपना हाथ नहीं देंगे तो मैं आपको ऊपर कैसे खींचूंगा. हे ब्रदर इफ़ यू वॉन्ट गिव मी योर हैंड देन हाउ विल आई पुल यू अप. हे ब्रदर इफ़ यू वॉन्ट गिव मी योर हैंड देन हाउ विल आई पुल यू अप. भाई का फ़ोन है. इज़ इट ब्रदर्स कॉल. भाई का फ़ोन है क्या. इज़ इट ब्रदर्स कॉल. क्या यही सब सुनने के लिए मैंने आपको फ़ोन किया था. Had I called you to hear all this? Had I called you to hear all this? नेक्स्ट सेंटेंस है. मैंने तो सोचा था कि आप दोनों परेशान होंगे. I thought you both must be worried. I thought you both must be worried. नेक्स्ट सेंटेंस है. बेवकूफ़, idiot,
इसमें भी तुम्हें विश्वास नहीं कि हम परेशान होंगे? इडियट, इवन इन दिस, इसमें भी यू आर्ट श्योर दैट वी विल बी वरिड? इडियट, इवन इन दिस यू आर्ट श्योर दैट वी विल बी वरिड? नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या कर रहे हो, मेरे साथ घूमने चलोगे? वॉट आर यू डूइंग? विल यू कम विद मी फॉर साइट सीइंग? कोई साइट, कोई दृश्य देखने। तो वॉट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, मेरे साथ घूमने चलोगे? विल यू कम विद मी फॉर साइट सीइंग? चलूंगा नहीं, दौड़ूंगा, बस अभी पहुंचता हूँ। आई वॉन्ट जस्ट कम, बस चलूंगा ही नहीं, दौड़ूंगा। I'll रन, I'll रन, बस अभी पहुंचता हूँ। I'll be there soon, बस अभी पहुंचता हूँ। I'll be there soon, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। I'm not taking anyone's side, I'm telling you the facts. I'm not taking anyone's side, I'm telling you the facts. मेरे ख्याल से वो दूसरे कमरे में है। I think she is in the other room. I think she is in the other room. मैंने बस वही किया जो उस वक्त करना मुझे सही लगा। I just did what I felt was the right thing to do that time, या फिर at the time. I just did what I felt was the right thing to do that time. नेक्स्ट सेंटेंस है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, तुम्हें भी थैंक यू कहना चाहिए। आई एम गिविंग यू अ कॉम्प्लीमेंट, यू शुड ऑल्सो से थैंक यू। आई एम गिविंग यू अ कॉम्प्लीमेंट, यू शुड ऑल्सो से थैंक यू। शुक्रगुजार हूँ ज़िंदगी का, तुम जैसा तोहफा उसने मुझे दिया। आई एम थैंकफुल टू लाइफ, इट gave me a gift like you. I am thankful to life, it gave me a gift like you. उस रात मैंने तुम्हें बहुत कुछ गलत कह दिया। That night I told you many mean things. That night I told you many mean things. दरअसल जो तुमने किया वो बिल्कुल सही किया। Actually what you did was absolutely right. Actually what you did was absolutely right. तुमने इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से संभाला। यू हैंडल्ड द सिचुएशन वेरी वेल। यू हैंडल्ड द सिचुएशन वेरी वेल। एक दोस्त बनकर तुमने निकी को संभाला। यू टुक केयर ऑफ निकी एज अ फ्रेंड। यू टुक केयर ऑफ निकी एज अ फ्रेंड। आज बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीख रही हूँ तुमसे। I enjoyed a lot today. I'm learning a lot from you. I enjoyed a lot today. I'm learning a lot from you. अच्छा सुनो, कौन आने वाली है यहाँ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, ख्याल रखने के लिए? Okay, listen. Who is going to come here to take care of you? Okay, listen. Who is going to come here to take care of you? बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। Is it paining a lot? Is it paining a lot? तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुमने मुझे उठाया नहीं, अकेले नाश्ता कर रहे हो, अकेले ब्रेकफास्ट कर रहे हो। यू डिडंट वेक मी अप, यू आर हैविंग ब्रेकफास्ट अलोन। यू डिडंट वेक मी अप, यू आर हैविंग ब्रेकफास्ट अलोन। हाँ, तुम सो रही थी, थोड़ी थकी सी, थोड़ी टायर्ड सी लग रही थी, तो मैंने तुम्हें जगाया नहीं, उठाया नहीं। यस यू वर स्लीपिंग, यू लुक्ड टायर्ड, सो आई डिडंट वेक यू अप। यस यू वर स्लीपिंग, यू लुक्ड टायर्ड, सो आई डिडंट वेक यू अप। क्या कोई बात है क्या? क्या कोई बात है? एक हफ्ते से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। इज़ देयर समथिंग? क्या कोई बात है? आई हैव बिन कॉलिंग यू फॉर अ वीक, यू आर नॉट पिकिंग अप माई फ़ोन। तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। एक हफ्ते से मैं बहुत बिज़ी थी। आई वॉज़ वेरी बिज़ी फॉर अ वीक। आई वॉज़ वेरी बिज़ी फॉर अ वीक। जब ज़िंदगी खुशी दे रही है तो मना क्यों कर रही हो? When life is giving you happiness, why are you denying it? When life is giving you happiness, why are you denying it? अगले साल व्रत रख लूँगी, फास्ट रख लूँगी। I'll fast next year, या फिर I'll keep a fast next year. तुम्हें व्रत रखने को नहीं कह रहा, मैं तुम्हें बदलने के लिए नहीं कह रहा। I'm not telling you to fast. I'm not asking you to change. I'm not telling you to fast.
आई एम नॉट आस्किंग यू टू चेंज। लेकिन तुम इस बारे में बार बार बात कर रहे हो कि तुमने फास्ट क्यों नहीं रखा, व्रत क्यों नहीं रखा, तो बट यू आर टॉकिंग अबाउट इट अगेन एंड अगेन, बट यू आर टॉकिंग अबाउट इट अगेन एंड अगेन। काम है उसका, वो तो करना पड़ेगा, मैं तो रोक भी नहीं सकता। इट्स हर जॉब, ये उसका काम है, शी हैज़ टू वर्क, उसे करना पड़ेगा, फिर शी विल हैव टू वर्क। आई कैंट इवन स्टॉप हर, मैं तो उसे रोक भी नहीं सकता। आई कैंट इवन स्टॉप हर। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को बदलने की। आई एम ट्राइंग टू चेंज माई सेल्फ। आई एम ट्राइंग टू चेंज माई सेल्फ। प्रॉब्लम तुम में है, परेशानी दिक्कत तुम में है, मुझ में नहीं। द प्रॉब्लम इज़ विथ यू नॉट मी। द प्रॉब्लम इज़ विथ यू नॉट मी। नमक कहाँ है, वेयर इज सॉल्ट। तेल कहाँ है, वेयर इज ऑयल। उसी तरह इलायची कहाँ है, तो वेयर इज कार्डमम। कार्डमम मीन्स इलायची। इधर ही होनी चाहिए, यहीं कहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बी हियर। इट मस्ट बी हियर। यहीं तो थी, यहीं तो होती थी, तो इट यूज्ड टू बी हियर। इट यूज्ड टू बी हियर। यहाँ पर भी नहीं है, तुमने कहा था यहाँ पे होगा, यहाँ पर भी नहीं है। इट्स नॉट हियर एज वेल। इट्स नॉट हियर एज वेल। यह सब कुछ बदल गया है। ऑल थिंग्स हैव चेंज्ड हियर। ऑल थिंग्स हैव चेंज्ड हियर। इसे फ्रिज में रख दो। इसे फ्रिज में रख दो। पुट दिस इनसाइड द फ्रिज। पुट दिस इनसाइड द फ्रिज। ये संभव नहीं होगा, या फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। इट वॉन्ट बी पॉसिबल। इट वॉन्ट बी पॉसिबल। मुझे तुम्हारा जवाब अभी इसी वक्त नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट योर आंसर राइट नाउ। आई डोंट वॉन्ट योर आंसर राइट नाउ। मैं इंतज़ार करने को तैयार हूँ या इच्छुक हूँ। विलिंग मीन्स होता है इच्छुक या तैयार। आई एम विलिंग टू वेट, मतलब मेरी मर्ज़ी है कि मैं वेट कर सकता हूँ। आई एम विलिंग टू वेट। लेकिन मेरा जवाब बदलेगा नहीं, तुम वेट करो, पर मेरा जवाब यही रहेगा। बट माई आंसर वॉन्ट चेंज। बट माई आंसर वॉन्ट चेंज। क्या मुझे अपना हाथ वापस मिल सकता है? तुम मुझसे हाथ मिला लिए, हाथ छोड़ोगे भी या नहीं? कैन आई हैव माई हैंड बैक? क्या मुझे मेरा हाथ मिल सकता है? क्या कर रही हो? मैं तो बस गाने सुन रही हूँ। वॉट आर यू डूइंग? क्या कर रही हो? वॉट आर यू डूइंग? मैं तो बस गाने सुन रही थी। आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू सॉन्ग्स। आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू सॉन्ग्स। तो अकेले क्यों सुन रही हो? यहाँ आकर सुनो। देन वाई आर यू लिसनिंग अलोन? कम हियर एंड लिसन। देन वाई आर यू लिसनिंग अलोन? कम हियर एंड लिसन। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी तुमने मना कर दिया। यू रिजेक्टेड सच अ बिग अपॉर्चुनिटी। यू रिजेक्टेड सच अ बिग अपॉर्चुनिटी। मैं तुम्हें ये सब करते नहीं देख सकती, तो मैं जा रही हूँ। आई कैंट सी यू डूइंग ऑल दिस, सो आई एम गोइंग। या तो हम कह सकते हैं, या फिर हम बोलेंगे आई कैंट स्टैंड सीइंग यू डू ऑल दिस, सो आई एम गोइंग। अरे मेरी सखी मुझे छोड़कर जा रही है, मेरी बेस्टी मुझे छोड़ के जा रही है। ओ माई बेस्टी इज़ लीविंग मी। ओ माई बेस्टी इज़ लीविंग मी। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ तो कृपया मुझे बता दो। इफ़ आई कैन डू एनी थिंग फॉर यू देन प्लीज़ टेल मी। इफ़ आई कैन डू एनी थिंग फॉर यू देन प्लीज़ टेल मी। ये ठीक हो जाएगी, इसके बारे में हम फिर किसी दिन बात करेंगे। ये ठीक हो जाएगी, शी विल बी ओके। इस बारे में हम फिर किसी दिन बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट इट सम अदर डे। वी विल टॉक अबाउट इट सम अदर डे। नेक्स्ट सेंटेंस है, पता नहीं ये सब मुझे इतना अफेक्ट क्यों कर रहा है। इन बातों का, इन चीज़ों का मुझ पर इतना अफेक्ट, इतना असर क्यों पड़ रहा है। आई डोंट नो वाई ऑल दिस इज़ अफेक्टिंग मी। आई डोंट नो वाई ऑल दिस इज़ अफेक्टिंग मी। पता नहीं मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ, ऐसा क्यों फील कर रही हूँ। आई डोंट नो वाई आई एम फीलिंग लाइक दिस। आई डोंट नो वाई आई एम फीलिंग लाइक दिस। मुझे रोने का मन क्यों हो रहा है, मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है। वाई डू आई फील लाइक क्राइंग। वाई डू आई फील लाइक क्राइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे लगता है कि उसका ये मतलब नहीं था। आई फील ही डिडंट मीन इट। आई फील ही डिडंट मीन इट। कब शुरू किया तुमने, कब शुरू किया। व्हेन डिड यू स्टार्ट। व्हेन डिड यू स्टार्ट। रिया की वजह से आदत लग गई मुझे, या आदत पड़ गई मुझे। आई गॉट हैबिचुएटेड ड्यू टू रिया। आई गॉट हैबिचुएटेड ड्यू टू रिया। वो सो गई क्या। डिड शी स्लीप। डिड शी स्लीप। हाँ वो सो रही है। येस शी इज़ स्लीपिंग। येस शी इज़ स्लीपिंग। तुमने बड़ी आसानी से मेरा भरोसा तोड़ दिया, मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। यू वेरी ईजली ब्रोक माई ट्रस्ट। यू वेरी ईजली ब्रोक माई ट्रस्ट।
तुम्हें आगे रखने के लिए मैंने खुद को ही पीछे छोड़ दिया। टू कीप यू अहेड आई लेफ्ट माई सेल्फ बिहाइंड। टू कीप यू अहेड आई लेफ्ट माई सेल्फ बिहाइंड। और तुम्हें पता है, तुम खुद को पीछे नहीं छोड़ पाए। एंड यू नो वॉट, यू couldn't लीव योर सेल्फ बिहाइंड। एंड यू नो वॉट, यू couldn't लीव योर सेल्फ बिहाइंड। मैं हमेशा से तुम्हें जीतना चाहती थी, पाना चाहती थी। इसे इंग्लिश में, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू वो यू एंड हैव यू। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू वो यू एंड हैव यू। या फिर आई ऑलवेज वॉन्टेड टू विन यू टू गेट यू। तुम मुझ में और रिया में से किसी एक को चुनोगे और हर बार की तरह फैमिली ही जीतेगी। यू चूज समवन बिटवीन मी एंड रिया एंड लाइक एवरी टाइम, और हर बार की तरह, हमेशा की तरह, ओनली द फैमिली विल विन। बस फैमिली ही जीतेगी। कितने साल गुजारे हैं उसने तुम्हारे साथ। शी स्पेंड सो मेनी ईयर्स विथ यू। कितने साल गुजारे हैं, बिताए उसने तुम्हारे साथ। शी स्पेंड सो मेनी ईयर्स विथ यू। पार्टी के बाद क्या तुम मुझे घर छोड़ सकती हो? क्या तुम मुझे घर ड्रॉप कर सकती हो? आफ्टर द पार्टी कैन यू ड्रॉप मी होम? आफ्टर द पार्टी कैन यू ड्रॉप मी होम? तुमने झूठ क्यों बोला? वाई डिड यू लाई? वाई डिड यू लाई, या फिर वाई डिड यू टेल अ लाई? तुमने झूठ क्यों बोला? पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लगा तुम मेरे लिए व्रत रखोगी, फास्ट रखोगी, फास्टिंग रखोगी। आई डोंट नो व्हाई आई थॉट दैट यू विल कीप अ फास्ट फॉर मी। आई डोंट नो व्हाई आई थॉट दैट यू विल कीप अ फास्ट फॉर मी। देखो, मुझे नहीं पता था कि तुम इन सब में विश्वास करते हो। जैसे करवा चौथ था, मुझे व्रत रखना चाहिए था, पर मुझे पता नहीं था कि तुम इसमें बिलीव करते हो। लुक, आई डिडंट नो दैट यू बिलीव इन ऑल दिस। लुक, आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था, देखो मुझे नहीं पता था कि तुम इन सब में विश्वास रखते हो। दैट यू बिलीव इन ऑल दिस। तुम्हारा क्या मतलब है नहीं पता था? तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय डिडंट नो? व्हाट डू यू मीन बाय डिडंट नो? तुम्हारा क्या मतलब नहीं पता था? अब कोई कहता है ना कि नहीं पता था, तुमने व्रत नहीं रखा, तो कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। कभी तुमसे कोई ऐसा काम नहीं करवाऊंगा जो तुम्हें करना ना हो, जो तुम्हें करना पसंद ना हो। I'll never make you do something which you don't like. I'll never make you do something which you don't like. मैं कभी तुमसे वैसे कोई काम नहीं करवाऊंगा जो तुम्हें पसंद ना हो, जो तुम्हें करना ना हो। तो which you don't like। नेक्स्ट सेंटेंस है, 2 दिन से मैं तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा हूँ। आई हैव बिन ट्राइंग योर नंबर फॉर 2 days। आई हैव बिन ट्राइंग योर नंबर फॉर 2 days। कहाँ थी तुम? वेयर वर यू? कहाँ थी तुम? वेयर वर यू? मैंने बटर चिकन बनाया है, ट्राई करो। ट्राई करो ना, नमक कैसा है। आई हैव प्रिपेयर्ड बटर चिकन, ट्राई इट एंड चेक। चेक फॉर सॉल्ट, मतलब नमक टेस्ट करो कि नमक कैसा है, चेक करो। तो आई हैव प्रिपेयर्ड बटर चिकन, मैंने बटर चिकन बनाया है, ट्राई करो ना, नमक कैसा है, ट्राई इट एंड चेक फॉर सॉल्ट। तुमने मेरी उंगली काट ली, मतलब किसी ने अपने हाथ से खिलाया और कोई इंसान काट ले उंगली को, तो तुमने मेरी उंगली काट ली। यू बिट माई फिंगर। यू बिट माई फिंगर। कैसा है, एक बार और? मतलब कोई खा के खिलाता है किसी को तो पूछता है ना कि कैसा है, एक बार और दूँ? हाउ इज़ इट, वन मोर, या फिर वन मोर टाइम, एक बार और दूँ? मेरे मुंह पर लगा दिया तुमने। कोई किसी को खिलाता है और वो उसके हाथ से उसे ही लगा देता है, जैसे केक खिलाते टाइम तो अक्सर होता है ऐसा। यू अप्लाइड इट ऑन माई फेस। तुमने तो मेरे फेस पर ही लगा दिया। तुमने तो मेरे चेहरे पर ही लगा दिया। यू अप्लाइड इट ऑन माई फेस। तुमने स्कूल की फ़ीस भर दी। हैव यू पेड द स्कूल फीस? हैव यू पेड द स्कूल फीस? तुमने स्कूल की फ़ीस भर दी। मैंने 2 दिन पहले भर दिया था। आई हैव पेड इट 2 days अगो। आई हैव पेड इट 2 days अगो। मैंने खुद ही भरा था। आई हैव पेड इट माई सेल्फ। आई हैव पेड इट माई सेल्फ। हाँ, तो कोई कहता है ना कि आर यू श्योर, पक्का तुमने भर दिया था? रिया से बात करो, उसने अभी तक मुझे फ़ोन नहीं किया है। टॉक टू रिया, शी हैज़न्ट कॉल्ड मी येट। टॉक टू रिया, रिया से बात करो, शी हैज़न्ट कॉल्ड मी येट। उसने अभी तक मुझे कॉल नहीं किया, फ़ोन नहीं किया है। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, सब्र रखो। तो हैव सम पेशेंस। जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। गो लिव योर लाइफ। गो लिव योर लाइफ। जाओ जाकर जी लो अपनी ज़िंदगी। वो 2 हफ्ते में शादी कर रही है। शी इज़ गेटिंग मैरिड इन 2 weeks। शी इज़ गेटिंग मैरिड इन 2 weeks। बच्ची है वो, अभी शादी कैसे कर सकती है?
तो शी इज़ जस्ट अ चाइल्ड, हाउ कैन शी गेट मैरिड? शी इज़ जस्ट अ चाइल्ड, हाउ कैन शी गेट मैरिड? बच्ची है अभी, वो शादी कैसे कर सकती है? तो कोई समझाता है ना कि मैं रिया से मिल चुकी हूँ, वो काफ़ी समझदार है, काफ़ी मैच्योर है। आई हैव मेट रिया, शी इज़ क्वाइट मैच्योर। आई हैव मेट रिया, शी इज़ क्वाइट मैच्योर। ये अविश्वसनीय है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, नाकाबिल यकीन, जिस पे यकीन ना हो। बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, मतलब देखते ही देखते पता ही नहीं चलता। तो इट्स अनबिलीवेबल, बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप सो फास्ट। क्या है ये सब? बिना मुझसे पूछे तुम लोग फार्म हाउस क्यों चले गए? What is all this? Why did you go to the farmhouse without asking me? What is all this? Why did you go to the farmhouse without asking me? तुम लोग बिना मुझसे पूछे फार्म हाउस क्यों चले गए? अगला सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि शादी की तैयारियों के लिए राहुल, तो फॉर मैरिज प्रिपरेशंस राहुल, शादी की तैयारियों के लिए, फॉर मैरिज प्रिपरेशंस। तो बताना तो चाहिए था मुझे, काम में बिजी था ना मैं। तो यू शुड हैव टोल्ड मी एट लीस्ट, कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। मैं काम में बिजी था ना, आई वॉज बिजी विथ माई वर्क। मतलब बता कर जाती, अगर मैं काम में बिजी था, मैसेज कर देती कुछ भी। तो तुम काम में ही तो बिजी रहते हो, यू आर ऑलवेज बिजी एट वर्क। तुम हमेशा काम में ही तो बिजी रहते हो, यू आर ऑलवेज बिजी एट वर्क। अब इस बात पे बहस मत करो, शुरू हो गई तो इस बात पर बहस नहीं करते हैं प्लीज़। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, लेट्स नॉट आर्ग्यू अबाउट दिस प्लीज़, लेट्स नॉट आर्ग्यू अबाउट दिस प्लीज़। मैं तुम्हारे साथ घर पर कैसे मूव इन कर सकती हूँ, मतलब तुम्हारे साथ घर पे कैसे रह सकती हूँ? हाउ कुड आई मूव इन विद यू इन योर हाउस? हाउ कुड आई मूव इन विद यू इन योर हाउस? हाउ कैन आई भी कह सकते हैं, या फिर हाउ कुड आई भी कह सकते हैं। कम से कम तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। एट लीस्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। एट लीस्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। कम से कम तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। मैं ये बात रिया की वजह से कह रहा हूँ, या फिर मैं ये रिया की वजह से कह रहा हूँ। आई एम सेइंग दिस बिकॉज ऑफ रिया। आई एम सेइंग दिस बिकॉज ऑफ रिया। यहाँ तो आएगी नहीं वो मुझसे मिलने, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे, शी वॉन्ट कम हियर टू मीट मी। शी वॉन्ट कम हियर टू मीट मी। वो तो यहाँ आएगी नहीं मुझसे मिलने। तो मैं एक इंसान कहाँ कहाँ जा सकता हूँ? तो मुझे वहीं रहना पड़ेगा ना। आई हैव टू स्टे देयर इट सेल्फ राइट। मुझे तो वहीं रहना पड़ेगा ना। आई हैव टू स्टे देयर इट सेल्फ राइट। मैंने पूरा घर ठीक ठाक कर दिया है, बच्चों का कमरा भी सजा दिया है। कब आ रहे हैं वे? आई हैव अरेंज्ड द इंटायर हाउस प्रॉपरली। मैंने पूरा घर सही से प्रॉपर तरीके से अरेंज कर दिया है, बच्चों का कमरा भी सजा दिया है। एंड इवन डेकोरेटेड द चिल्ड्रंस रूम। व्हेन आर दे कमिंग? कब आ रहे हैं वे? व्हेन आर दे कमिंग? अब रिप्लाई में कोई कहता है ना, जैसे कि अब वो आ रहे हैं तो बताएगा कि आ रहे हैं, तो दे आर कमिंग। और अगर उन्होंने आने से मना कर दिया है ऐसा कहना हो, तब हम बोलेंगे दे हैव रिफ्यूज्ड टू कम। उन्होंने आने से मना कर दिया है, दे हैव रिफ्यूज्ड टू कम। वो मुझे छोड़कर चली गई, वो नहीं बच सकी, वो ज़िंदा नहीं बच सकी, मुझे छोड़कर चली गई। शी लेफ्ट मी, शी कुडंट सर्वाइव। शी लेफ्ट मी, शी कुडंट सर्वाइव। और मैं पिछले 1 साल से झूठ के सहारे जीती आ रही हूँ। एंड आई हैव बिन लिविंग माई लाइफ फॉर लास्ट 1 ईयर विद दिस लाई। इस झूठ के साथ, इस झूठ के सहारे। एंड आई हैव बिन लिविंग माई लाइफ फॉर लास्ट 1 ईयर विद दिस लाई। नेक्स्ट सेंटेंसेस, लेकिन सच जानकर भी मैंने क्या पाया? बट वट डिड आई अचीव आफ्टर नोइंग द ट्रुथ? लेकिन सच जानने के बावजूद भी, जानने के बाद भी मैंने क्या अचीव कर लिया? बट वट डिड आई अचीव आफ्टर नोइंग द ट्रुथ? मैंने सब कुछ खो दिया। जब कोई कहता ना कि क्या तुमने सब कुछ खोया है, कि उसने भी खोया है। आई लॉस्ट एवरीथिंग, मैंने सब कुछ खो दिया। हैव यू लॉस्ट एवरीथिंग? क्या तुमने ही सब कुछ खोया है? हैव यू लॉस्ट एवरीथिंग? तुमने इतने उदास चेहरे क्यों बनाए हैं? वाई हैव यू मेड सो सैड फेसेस? वाई हैव यू मेड सो सैड फेसेस? मैं तुम्हें कभी दुख पहुंचाना नहीं चाहती थी। आई नेवर वॉन्टेड टू हर्ट यू। मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहती थी। आई नेवर वॉन्टेड टू हर्ट यू। मैं तो बस तुम्हें खुश रखना चाहती थी। आई जस्ट वॉन्टेड टू कीप यू हैप्पी। आई जस्ट वॉन्टेड टू कीप यू हैप्पी। मैं तो बस तुम्हें खुश रखना चाहती थी।
लेकिन इस 1 साल में मैंने तुम्हें सबसे ज़्यादा दुख दिया. बट इन दिस 1 ईयर आई हर्ट यू द मोस्ट. बट इन दिस 1 ईयर आई हर्ट यू द मोस्ट. नेक्स्ट सेंटेंसेस. कहते हैं कि ज़िंदगी सब कुछ सिखा देती है. कहते हैं कि इस बात को या तो दे से या फिर इट्स सेड. लाइफ टीचेज यू एवरीथिंग. ज़िंदगी सब कुछ सिखा देती है, लेकिन मैंने ज़िंदगी में जो कुछ सीखा अपने दोस्तों से सीखा. बट वॉट एवर आई हैव लर्न इन माई लाइफ इज़ फ्रॉम माई फ्रेंड्स. बट वॉट एवर आई हैव लर्न इन माई लाइफ इज़ फ्रॉम माई फ्रेंड्स. नेक्स्ट सेंटेंसेस. अब अगर ये कहना हो कि तुम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए, तुमने मुझे आकर नहीं देखा, एक बार भी मुझे विजिट नहीं किया. यू डिडंट विजिट मी इवन वंस. यू डिडंट विजिट मी इवन वंस. अगला सेंटेंस है. आज जब मैं खुद तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ तो प्यार जता रहे हो. टुडे व्हेन आई हैव कम हियर लुकिंग फॉर यू देन यू आर शावरिंग मी विद अफेक्शन. तो प्यार की बारिश कर रहे हो, प्यार जता रहे हो. देन यू आर शावरिंग मी विद अफेक्शन. नेक्स्ट सेंटेंसेस. अब अगर ये कहना हो कि वो क्या है ना, या दरअसल एक्चुअली काम बहुत ज़्यादा हो गया था, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया था. एक्चुअली द वर्कलोड वॉज टू मच. एक्चुअली द वर्कलोड वॉज टू मच. काम नहीं, माल बहुत ज़्यादा हो गया है, पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. नॉट वर्क, द मनी हैज़ इंक्रीज्ड. नॉट वर्क, काम नहीं, द मनी हैज़ इंक्रीज्ड. पैसे बढ़ गए, पैसे ज़्यादा हो गए. मैं यहाँ बैठ जाऊँ तो तुम्हारा सोफ़ा गंदा तो नहीं हो जाएगा. इफ़ आई सिट हियर विल योर सोफ़ा बिकम डर्टी. क्या तुम्हारा सोफ़ा गंदा हो जाएगा अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ. इफ़ आई सिट हियर विल योर सोफ़ा बिकम डर्टी. तुमने खाना नहीं खाया है क्या. Haven't you eaten food? Haven't you eaten food? तुमने खाना नहीं खाया है क्या. मैंने आपके बगैर, आपके बिना कभी खाया है क्या. Have I ever eaten without you? Have I ever eaten without you? तुम्हें पता है आज मैं किस लिए मंदिर गई थी. You know why I went to the temple today? You know, तुम्हें पता है आज मैं किस लिए मंदिर गई थी. Why I went to the temple today? किस लिए तो फॉर वॉट या फिर वाई ऐसे भी कह सकते हैं. अपने लिए बहू मांगने गई थी. आई वेंट टू आस्क फॉर अ डॉटर इन लॉ फॉर माई सेल्फ. आई वेंट टू आस्क फॉर अ डॉटर इन लॉ फॉर माई सेल्फ. अरे कहाँ खोई हो तुम, मैं पूछ रही हूँ खाना तैयार है या नहीं. हे, इन विच थॉट्स आर यू लॉस्ट इन. आई एम आस्किंग दैट इज़ द फूड रेडी और नॉट. मैं पूछ रही हूँ खाना तैयार है या नहीं. आई एम आस्किंग दैट इज़ द फूड रेडी और नॉट. इतनी देर क्यों लगा दी तुमने. तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी. वाई डिड यू टेक सो लॉन्ग. तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी. डू यू नो आई वॉज गेटिंग सो वरीड अबाउट इट. डू यू नो आई वॉज गेटिंग सो वरीड अबाउट यू. नेक्स्ट सेंटेंसेज. अब अगर ये कहना हो कि देखूं तो नई शर्ट में मेरा भाई दिखता कैसा है. लेट मी सी हाउ डज माई ब्रदर लुक्स इन दिस न्यू शर्ट. लेट मी सी, देखूं तो नई शर्ट में मेरा भाई दिखता कैसा है. लेट मी सी हाउ डज माई ब्रदर लुक्स इन दिस न्यू शर्ट. हम गरीबों से अगर कोई गलती हो गई हो तो भूल समझकर माफ़ कर देना. इफ़ वी पुअर पीपल हैव कमिटेड एनी मिस्टेक then consider it as an error and forgive us. If we poor people have committed any mistake, then consider it as an error and forgive us. तो भूल समझकर माफ़ कर देना. आप कैसी बातें कर रहे हैं. आप तो मेरे पिता समान हैं. आप कैसी बातें कर रहे हैं, या तो सिंपली कह सकते हैं व्हाट आर यू सेइंग, ये आप क्या कह रहे हैं, या फिर व्हाट टाइप ऑफ टॉक्स आर यू टेलिंग. आप तो मेरे पिता समान हैं. यू आर लाइक माई फादर टू मी. यू आर लाइक माई फादर टू मी. उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इस घर में एक बहुत ही कीमती चीज़ है. दे डोंट हैव एनी थिंग बट देयर इज़ अ प्रेशियस थिंग इन दिस हाउस. They don't have anything but there is a precious thing in this house.
आप कहें तो मैं उसे अपने साथ ले लूँ। इफ़ यू गिव परमिशन, अगर आप परमिशन दें तो मैं उसे अपने साथ ले लूँ। देन शैल आई टेक दैट अलॉन्ग विथ मी, देन शैल आई टेक दैट अलॉन्ग विथ मी। अगर तुम्हें वो चीज़ इतनी ही पसंद है तो मैं क्यों इनकार करूँगा। इफ़ यू लाइक दैट थिंग सो मच देन वाई विल आई रिफ्यूज़। इफ़ यू लाइक दैट थिंग सो मच देन वाई विल आई रिफ्यूज़, तो मैं क्यों मना करूँगा। आपने हमें इस हाल में, इस बुरे वक्त में, इस हाल में देखा, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। He won't like it if you saw us in this state. He won't like it if you saw us in this state. अगर तुम यही चाहती हो तो हम तुम्हारी ज़िंदगी में कभी दखल नहीं देंगे। If that's what you wish, we will never interfere in your life. If that's what या फिर this is what you want भी कह सकते हैं, तो हम तुम्हारी ज़िंदगी में कभी दखल नहीं देंगे। वी विल नेवर इंटरफेयर इन योर लाइफ। ये बुरा वक्त है, टल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। दिस इज़ अ बैड फेज या फिर बैड टाइम, इट विल पास, एवरीथिंग विल बी फाइन। दिस इज़ अ बैड फेज, इट विल पास, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब ठीक हो जाएगा। कभी अलविदा ना कहना, कहो फिर मिलेंगे। डोंट एवर से गुड बाय, से वी विल मीट अगेन। डोंट एवर से गुड बाय, से वी विल मीट अगेन, कहो फिर मिलेंगे। उसने आपको क्यों नहीं बुलाया, या फिर उसने आपको इनवाइट क्यों नहीं किया, दावत क्यों नहीं दिया। वाई डिडंट शी इनवाइट यू, वाई डिडंट शी इनवाइट यू। क्या तुम झाड़ू लाए हो। हैव यू ब्रॉट द ब्रूम, हैव यू ब्रॉट द ब्रूम। वो झाड़ू मुझे दो, मुझे दे दो। गिव दैट ब्रूम टू मी, गिव दैट ब्रूम टू मी। ये फ्यूज़ लो, इसे किसी ऐसी जगह छुपा दो जो किसी को मिल ना सके, ना मिल सके। टेक दिस फ्यूज़ एंड हाइड इट समवेयर या फिर सम प्लेस नो वन कैन फाइंड इट, कोई भी ढूंढ ना सके। टेक दिस फ्यूज़ एंड हाइड इट सम प्लेस नो वन कैन फाइंड इट, कोई भी ढूंढ ना सके। क्या मैं इसे फ्रिज के पीछे छुपा दूँ। मे या फिर शुड आई हाइड इट बिहाइंड द फ्रिज, मे आई हाइड इट बिहाइंड द फ्रिज। देख क्या रहे हो, बचाओ उसे। जब कोई खतरे में होता है तो हम उसे ध्यान से देखते हैं, इसलिए यहाँ पे वॉचिंग का यूज़ करेंगे। वॉट आर यू वॉचिंग, सेव हिम। वॉट आर यू वॉचिंग, सेव हिम। तुम मदद नहीं मांग सकते थे क्या। couldn't you have asked for help, couldn't you have asked for help। वो आपको बुला रही है, वक्त बहुत कम है। शी इज़ कॉलिंग यू, देयर इज़ वेरी लिटिल टाइम। शी इज़ कॉलिंग यू, देयर इज़ वेरी लिटिल टाइम। आप उनके रिश्तेदार हैं क्या। आर यू हर रिलेटिव, आर यू हर रिलेटिव। इस उम्र में आप एक छोटे बच्चे को संभालेंगे। विल यू लुक आफ्टर अ स्मॉल चाइल्ड इन दिस ओल्ड एज। इस बूढ़े एज में, बुढ़ापे में। विल यू लुक आफ्टर अ स्मॉल चाइल्ड इन दिस ओल्ड एज। मेरा मतलब इसके पापा नहीं है क्या। आई मीन डजंट ही हैव अ फादर, आई मीन डजंट ही हैव अ फादर। खैर, कागज़ात तैयार होते ही हम आपको भिजवा देंगे। एनीवे, वंस द डॉक्यूमेंट्स आर रेडी वी विल सेंड देम टू यू, और वी कैन से एनीवे आई विल सेंड यू द डॉक्यूमेंट्स व्हेन दे आर रेडी। एनीवे आई विल सेंड यू द डॉक्यूमेंट्स व्हेन दे आर रेडी। इस जन्म में तुम मेरी होगी। यू विल बी माइन इन दिस बर्थ, यू विल बी माइन इन दिस बर्थ। मुझे मेरे पैसे चाहिए बस, मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। I just want my money and I don't want arguments. I just want my money and I don't want arguments. आप भूल गए कि आपके बुरे वक्त में मैं आपके काम आया या आया था। You forgot that I helped you in your bad times. You forgot that I helped you in your bad times. क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि मेरे बुरे वक्त में आप मेरे काम आए। Isn't it your duty to help me in my bad times? Isn't it your duty to help me in my bad times? Next sentences. सभी ने हमारा साथ छोड़ दिया है, लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी होगी।
एवरी वन हैज़ लेफ्ट अस बट यू हैव टू बी ब्रेव, लेकिन तुम्हें बहादुर बनना होगा, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। एवरी वन हैज़ लेफ्ट अस बट यू हैव टू बी ब्रेव। अब तो ये घर भी हमारा नहीं रहेगा। This house won't be ours anymore. Or we can say, now this house too won't remain ours. Now this house too won't remain ours. आपने हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद की, बेघरों को घर दिया। You always helped the needy, gave homes to the homeless. You always helped the needy. आपने हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद की, बेघरों को घर दिया, gave homes to the homeless. हम आपको तकलीफ़ देना नहीं चाहते। We don't want to trouble you. We don't want to trouble you. आप इसे अपना ही घर समझिए। Consider it your own home. Consider it your own home. मैं इसे कहाँ रखूँ? Where do I keep it? Where do I keep it? उधर देखो तुम कितने काले हो, वो कितना गोरा है। Look there, you are so dark while he is so fair. जबकि वो कितना गोरा है, तुम कितने काले हो जबकि वो कितना गोरा है। You are so dark while he is so fair. तुम कितने गरीब हो, वो कितना अमीर है। How poor you are and how rich he is. How poor you are and how rich he is. कोई हमारे बीच नहीं आ सकता। Nobody can come between us. Nobody can come between us. आज मुझे पूरा यकीन हो गया कि मेरा फैसला बिल्कुल सही था, ठीक था। Today I am completely convinced that my decision was absolutely right. Today I am completely convinced that my decision was absolutely right. आप यहाँ से चले जाइए। मैं नहीं चाहती वो आपसे मिले। You go away from here. I don't want him to meet you. You go away from here. I don't want him to meet you. मैं नहीं चाहती कि वो आपसे मिले, कि आप दोनों की मुलाकात हो। कह देना उसे, मैं खुद आकर मिल लूँगा। Tell him I'll come and meet him myself. Tell him I'll come and meet him myself. पैसे कब लेकर पहुँच रहे हो यहाँ, या कब लेकर आ रहे हो यहाँ। When are you coming here with the money? When are you coming here with the money? और वैसे भी मेरा यहाँ पर कर्ज़ा बहुत हो गया है, मतलब मैं नहीं आ रहा, वैसे भी मेरा यहाँ पर कर्ज़ा बहुत हो गया है। एंड एनी वे आई हैव टेकन टू मच लोन हियर। एंड एनी वे आई हैव टेकन टू मच लोन हियर। अपनी आया को पगार भी नहीं दे पाया हूँ मैं, तो मैं पैसे लेकर क्या आऊँगा। आई couldn't even give salary to the caretaker of my house. I couldn't even give salary to the caretaker of my house. Next sentence is, तुम लोग पार्टी दे रही हो, हमें नहीं बुलाओगी। You guys are throwing a party. Won't you call us? You guys are throwing a party. तुम लोग पार्टी दे रही हो, हमें नहीं बुलाओगी। Won't you call us? जिस लड़के ने हमारी जान बचाई है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। I want to meet the boy who saved our lives. मैं उस लड़के से मिलना चाहती हूँ जिसने हमारी जान बचाई है। Who saved our lives. तो जिस लड़के ने हमारी जान बचाई है, तो our lives, एक से ज़्यादा लोग हैं तो our lives. नेक्स्ट सेंटेंस इज, अब अगर ये कहना हो कि उसने हमारी जान बचाई, वो कौन है, तुम ये भी नहीं जान पाए, तुम ये भी जान नहीं पाए। ही सेव्ड आवर लाइव्स, यू कुडंट इवन फाइंड आउट हु ही इज़। उसने हमारी जान बचाई, ही सेव्ड आवर लाइव्स, वो कौन है तुम ये भी नहीं जान पाए। यू कुडंट इवन फाइंड आउट हु ही इज़। तुम लोगों को अक्ल नहीं है क्या, दिमाग नहीं है क्या, भाग क्यों रहे हो। डोंट यू हैव ब्रेन्स, यू मीन्स तुम भी होता है और तुम लोग भी होता है। डोंट यू हैव ब्रेन्स, तुम लोगों को अक्ल नहीं है क्या, क्यों भाग रहे हो, भाग क्यों रहे हो, वाई आर यू रनिंग अवे। इसके माँ बाप को मंजूर नहीं है, इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है, भागने का फ़ैसला किया है, या फिर भागकर शादी करने का फ़ैसला किया है। हर पेरेंट्स डोंट एक्सेप्ट दिस अलायंस, इस मंजूरी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो हेंस इसलिए
वी डिसाइडेड टू अलोप, इसलिए हमने भागकर शादी करने का फैसला किया। हर पेरेंट्स डोंट एक्सेप्ट दिस अलायंस, हेंस वी डिसाइडेड टू अलोप। क्यों मंजूर करेंगे? तुम्हारे पेरेंट्स क्यों मानेंगे, क्यों एग्री करेंगे? वाई वुड दे एग्री? वाई वुड दे एग्री? 20 साल पाल पोस कर बड़ा किया है, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? दे, बाय मिस्टेक देयर हो गया, दे, THEY, दे रेज्ड हर फॉर 20 ईयर्स, अपनी बेटी को 20 ईयर्स, 20 साल तक पाला पोसा है। विल दे लेट हर रुइन हर लाइफ, क्या वो उसे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने देंगे? हमें जाने दो, हमारी ज़िंदगी का सवाल है। लेट अस गो, इट्स अबाउट आवर लाइव्स, या फिर इट्स अ मैटर ऑफ आवर लाइव्स। हमें जाने दो, लेट अस गो, हमारी ज़िंदगी का सवाल है, इट्स अबाउट आवर लाइव्स। कोई भी माँ बाप अपने फ़ायदे के लिए बच्चों को नहीं पालते। नो पेरेंट रेजेस चिल्ड्रन फॉर देयर ओन बेनिफिट। नो पेरेंट रेजेस चिल्ड्रन फॉर देयर ओन बेनिफिट। तुम्हें पता है माँ बाप की कीमत क्या है? माँ बाप की वैल्यू क्या है? डू यू नो द वैल्यू ऑफ अ पेरेंट? डू यू नो द वैल्यू ऑफ अ पेरेंट? उनके होते हुए कीमत पता नहीं चलती, उनके ना होने पर पता चलती है। यू वॉन्ट अंडरस्टैंड देयर वैल्यू वेन दे आर अराउंड, जब वो आपके आस पास होते हैं तब आपको उनकी वैल्यू पता नहीं चलती। यू वुड नो इट वेन दे आर नॉट अराउंड, पता तब चलेगा आपको जब वो आपके आसपास नहीं होंगे। तो उनके होते हुए कीमत पता नहीं चलती, उनके ना होने पर पता चलती है। यू वॉन्ट अंडरस्टैंड देयर वैल्यू वेन दे आर अराउंड, यू वुड नो इट वेन दे आर नॉट अराउंड। नेक्स्ट सेंटेंसेस। जल्दबाजी मत करो, बहुत बुरी तरह गिरोगे या फिर मुंह के बल गिरोगे। डोंट बी इन अ हरी, यू विल फॉल वेरी बैडली। डोंट बी इन अ हरी, यू विल फॉल वेरी बैडली। अगली बार गलत राय मत देना मुझे। नेक्स्ट टाइम डोंट गिव मी रॉन्ग एडवाइस। नेक्स्ट टाइम डोंट गिव मी रॉन्ग एडवाइस। सपना अलग है, सच्चाई अलग है। The dream is different and the reality is different. The dream is different and the reality is different. Next sentences. सपने में मैं तुम्हें कुछ भी करने से नहीं रोक सकता। In your dreams, तुम्हारे सपने में I can't stop you from doing anything. मैं तुम्हें कुछ भी करने से नहीं रोक सकता। I can't stop you from doing anything. करो तुम्हें जो करना है, करो तुम जो करना चाहते हो। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। ये लिफ्ट है, स्विमिंग पूल नहीं है। दिस इज़ अ लिफ्ट, इट्स नॉट अ स्विमिंग पूल। दिस इज़ अ लिफ्ट, इट्स नॉट अ स्विमिंग पूल। क्यों हमें डिस्टर्ब कर रहे हो तुम? वाई आर यू डिस्टर्बिंग अस? वाई आर यू डिस्टर्बिंग अस? चुप रहो तुम वरना चांटा मारूंगा। You shut up, otherwise I'll slap you. You shut up, otherwise I'll slap you. Next sentences. तो बताओ तुम्हें क्या समस्या है, क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम है? So tell me what's your problem. So tell me what's your problem. बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी समस्या है कि मेरी समस्या कोई समझता ही नहीं है। I have many problems. The biggest problem is that nobody understands my problem. I have many problems. बहुत सारी समस्या है मेरी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है मेरे। सबसे बड़ी समस्या है कि मेरी समस्या कोई समझता ही नहीं है। The biggest problem is that nobody understands my problem. समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ। I don't understand that from where should I begin? I don't understand that from where should I begin? नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे बहुत डर लगता है। आग से बहुत डर लगता है मुझे। आई फील वेरी स्केयर्ड, आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ फायर। मुझे बहुत डर लगता है, आई फील वेरी स्केयर्ड। आग से बहुत डर लगता है मुझे, आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ फायर। तो अमेरिका में बिजनेस क्या करते हो तुम? सो व्हाट बिजनेस डू यू डू इन अमेरिका? सो व्हाट बिजनेस डू यू डू इन अमेरिका? ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। You have asked a very difficult question. You have asked a very difficult question.
मतलब मुश्किल सवाल कैसे? तुम्हारा मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन? तो मतलब ये है कि आसान सवाल ये है कि कौन सा बिजनेस नहीं करता मैं। आई मीन दैट इट्स अ मच ईजियर क्वेश्चन टू आस्क दैट विच बिजनेस आई डोंट डू। मतलब ये है कि आई मीन दैट आसान सवाल ये है कि कौन सा बिजनेस नहीं करता मैं। इट्स अ मच ईजियर क्वेश्चन टू आस्क दैट विच बिजनेस आई डोंट डू। कौन सा बिजनेस नहीं करता मैं? विच बिजनेस आई डोंट डू। मैं इसको बोल चुकी हूँ, अगर इसने दोबारा मेरे व्हाट्सएप चैट्स पढ़े ना तो मैं इसकी जान ले लूँगी। आई हैव टोल्ड हर इफ़ शी रीड्स माई व्हाट्सएप चैट्स अगेन आई एम गोइंग टू किल हर। आई हैव टोल्ड हर, मैं इसको बोल चुकी हूँ, कह चुकी हूँ, अगर इसने दोबारा मेरे व्हाट्सएप चैट पढ़े ना, इफ़ शी रीड्स माई व्हाट्सएप चैट्स अगेन, मैं इसकी जान ले लूँगी। आई एम गोइंग टू किल हर। ये सब रोज़ रोज़ मुझसे नहीं होगा। आई वॉन्ट बी एबल टू हैंडल इट डेली। मैं रोज़ रोज़ इसे हैंडल नहीं कर पाऊँगी। आई वॉन्ट बी एबल टू हैंडल इट डेली। सुनो, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लिसन, आई कैन एक्सेप्ट ऑल योर कंडीशंस। मैं तुम्हारी सारी कंडीशंस को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, बट दैट्स नॉट हैपनिंग। बट वो नहीं हो रहा जो तुम कह रही हो। तुमने शादी कर ली। यू गॉट मैरिड। तुमने शादी कर ली। यू गॉट मैरिड। हाँ, तुम लोगों की वजह से मैंने उसे मुसीबत में डाल दिया है। यस, आई हैव पुट हिम इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ यू गाइज। हाँ, तुम लोगों की वजह से मैंने उसे मुसीबत में डाल दिया। मैंने शादी कर ली, तो यस, आई हैव पुट हिम इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ यू गाइज। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना, ठीक है? नाउ प्लीज़ डोंट टेल एनी वन अबाउट दिस, ओके? नाउ प्लीज़ डोंट टेल एनी वन अबाउट दिस, ओके? अब अगर ये कहना हो कि देखो, तुम उनकी दोस्त हो, तुम शादीशुदा हो और शादी से खुश भी हो। लुक, यू आर हिज फ्रेंड, यू आर मैरिड एंड हैप्पी अबाउट इट। लुक, यू आर हिज फ्रेंड, तुम उनके दोस्त हो, यू आर मैरिड, शादीशुदा हो, एंड हैप्पी अबाउट इट, और शादी से खुश हो और इस बात से खुश हो, एंड हैप्पी अबाउट इट। आगे का सेंटेंस है, तो मेरे ख्याल से, तो मुझे लगता है, तो आई थिंक तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास दिलाओ। सो आई थिंक इट्स योर ड्यूटी टू मेक हिम रियलाइज़ अबाउट हिज मिस्टेक। सो आई थिंक इट्स योर ड्यूटी टू मेक हिम रियलाइज़ अबाउट हिज मिस्टेक। मैंने सब कुछ छोड़ दिया तुम्हारे लिए। आई गिव अप एवरीथिंग फॉर यू, या फिर आई लेफ्ट एवरीथिंग फॉर यू। हम पहले ही अलग हो चुके थे। वी वर ऑलरेडी सेपरेटेड। वी वर ऑलरेडी सेपरेटेड। हम नहीं, तुम्हारी इच्छा थी, मेरी नहीं। मतलब अलग होने की जो इच्छा थी, जो विश थी, वो तुम्हारी थी, मेरी नहीं। तो तुम हम क्यों बोल रहे हो? तो नॉट अस, यू। इट वॉज योर विश नॉट माइंड। नॉट अस, हम नहीं, तुम्हारी इच्छा थी, तो इट वॉज योर विश नॉट माइंड, मेरी नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तो बस हमेशा हर बार तुम्हारी इच्छा को पूरी करती गई। आई जस्ट ऑलवेज फुलफिल्ड योर विश एवरी टाइम। आई जस्ट ऑलवेज फुलफिल्ड योर विश एवरी टाइम। लेकिन अब और नहीं, मैंने आज एक फ़ैसला लिया, एक डिसीजन लिया है कि तुम इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। But not anymore. I have taken a decision today that you leave right now from this place. But not anymore. लेकिन अब और नहीं. I have taken a decision today that you leave right now from this place. आप कहाँ जा रही हैं? Where are you going? Where are you going? आप कहाँ जा रही हैं? मैं तो हमेशा से फार्म हाउस में ही रहना चाहती थी। I have always wanted to stay in the farmhouse. I have always wanted to stay in the farmhouse. अब मैं वहीं रहूँगी। ये घर अब तुम्हारा है, ध्यान रखना। Now I'll stay there itself. Now it's your house. Take care of it. अब मैं वहीं रहूँगी। Now I'll stay there itself. ये घर अब तुम्हारा है। Now it's your house. इसका ध्यान रखना। Take care of it. नेक्स्ट सेंटेंस है, शादी नई है, संभल कर चलना चाहिए।
वी आर न्यूली मैरिड। हमारी नई नई शादी है, हमें संभल कर चलना चाहिए, एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मिस्टेक्स होते हैं। तो वी आर न्यूली मैरिड, वी शुड बी कॉशियस। देखो, तुम मुझे संभाल लो, मैं शादी संभाल लूँगी। लुक, यू टेक केयर ऑफ मी, आई टेक केयर ऑफ दिस मैरिज। लुक, यू टेक केयर ऑफ मी, आई टेक केयर ऑफ दिस मैरिज। आज फिर से सिर दर्द हो रहा है तुम्हें, आज फिर से तुम्हें हेडेक हो रहा है। यू आर हैविंग अ हेडेक टुडे एज वेल। यू आर हैविंग अ हेडेक टुडे एज वेल। कान खोलकर सुन लो, इट मीन्स ध्यान से सुन लो। तुम्हारे घर वालों से बात करके मैं तुम्हारी या तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। लिसन टू मी केयरफुली, आई स्पीक टू योर फैमिलीज। फैमिलीज हो गया तो दोनों के लिए टू या बोथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड फिक्स योर वेडिंग। कान खोलकर सुन लो, ध्यान से सुन लो। लिसन टू मी केयरफुली, तुम्हारे घर वालों से बात करके, तुम दोनों की फैमिली से बात करके मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। आई स्पीक टू योर फैमिलीज एंड फिक्स योर वेडिंग। तुम इसे घर ले जाओ, मैं इसका इंतज़ार करने के लिए, इसका वेट करने के लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ। यू टेक हर होम, आई एम रेडी टू वेट फॉर हर। यू टेक हर होम, आई एम रेडी टू वेट फॉर हर। नेक्स्ट सेंटेंसेस। अरे तुम कब आए, कैसे हो, पैसे मिले। अरे तुम कब आए, हे व्हेन डिड यू कम। और वी कैन से हे व्हेन डिड यू अराइव। कैसे हो, पैसे मिले। हाउ आर यू, डिड यू गेट द मनी। हाउ आर यू, डिड यू गेट द मनी। जाते समय बताना चाहिए था ना, या फिर तुम जब गए तो तुम्हें बताना चाहिए था मुझसे। यू शुड हैव टोल्ड मी व्हेन यू लेफ्ट। यू शुड हैव टोल्ड मी व्हेन यू लेफ्ट। नेक्स्ट सेंटेंसेस। तुम्हें इस गांव में जिंदा नहीं रहना है क्या, या फिर तुम इस गांव में जीना नहीं चाहते क्या, यहाँ के नियम भूल गए हो क्या। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। डोंट यू वॉन्ट टू लिव इन दिस विलेज, हैव यू फॉरगॉटन द रूल्स। आई वॉन्ट स्पेयर एनी वन। डोंट यू वॉन्ट टू लिव इन दिस विलेज, तुम इस गांव में जिंदा नहीं रहना चाहते क्या। हैव यू फॉरगॉटन द रूल्स, रूल्स को भूल गए हो क्या। आई वॉन्ट स्पेयर एनी वन, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट सेंटेंसेस। इसकी वजह से मेरे दोस्त से मुझे थप्पड़ खाना पड़ा था। आई वॉज स्लैप्ड बाय माई फ्रेंड बिकॉज ऑफ हर। इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ हर। आई वॉज स्लैप्ड बाय माई फ्रेंड बिकॉज ऑफ हर। वो भी बिना किसी मतलब के, बिना किसी वजह, बिना किसी रीज़न के। दैट टू विदाउट एनी रीज़न। दैट टू विदाउट एनी रीज़न। ये पैतरा ना, ये ट्रिक ना हमेशा याद रखना, तभी तुम थप्पड़ खाने से बचोगे, भाग पाओगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस ट्रिक, दैट्स हाउ, और वी कैन से ओनली देन, यू गेट अवे विदाउट गेटिंग स्लैप्ड। ऑलवेज रिमेंबर दिस ट्रिक, इस ट्रिक को हमेशा याद रखना। दैट्स हाउ, तभी तुम थप्पड़ खाने से बचोगे। दैट्स हाउ यू गेट अवे विदाउट गेटिंग स्लैप्ड। नेक्स्ट सेंटेंसेस। मैं तुम्हें कभी ताना नहीं दूंगा। I'll never taunt you. I'll never taunt you. वो लोग नज़दीक आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। They are coming closer. They are coming closer. इसको किसी भी तरह पकड़ना होगा, ढूंढना होगा, पकड़ना होगा। वी हैव टू फाइंड हिम एनी हाउ। वी हैव टू फाइंड हिम एनी हाउ। पता लगाओ वहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, या उधर क्या हो रहा है। फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। आई डिडंट वॉन्ट टू डू दैट। आई डिडंट वॉन्ट टू डू दैट। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। इट्स ओके, या फिर कह सकते हैं नो प्रॉब्लम। आई डिडंट फील बैड। इट्स ओके, आई डिडंट फील बैड। बताओ कौन है वो, मेरे पास सबूत है। मेरे खबरी ने मुझे सब बता दिया। टेल मी हु इज़ शी। आई हैव एन एविडेंस, मेरे पास सबूत है। मेरे खबरी ने मुझे सब बता दिया। माई इन्फॉर्मर, खबर पहुंचाने वाला। माई इन्फॉर्मर टोल्ड मी एवरीथिंग। टेल मी हु इज़ शी, आई हैव एन एविडेंस, माई इन्फॉर्मर टोल्ड मी एवरीथिंग। जैसा तुम सोच रही हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नथिंग एज यू आर थिंकिंग। देयर इज़ नथिंग एज यू आर थिंकिंग।
मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक हो ना तुम? आई एम टॉकिंग टू यू, आर यू ऑल राइट? आई एम टॉकिंग टू यू, आर यू ऑल राइट? ठीक हो ना तुम? मुझे अकेले घर में रहने में बहुत डर लग रहा है, घर आ जाओ जल्दी जल्द। आई एम फीलिंग सो स्कैर्ड टू बी अलोन एट होम, कम होम सून। आई एम फीलिंग सो स्कैर्ड टू बी अलोन एट होम, कम होम सून। घर जल्दी आ जाओ। नेक्स्ट सेंटेंसेस। मैंने जो कुछ किया तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए किया। Whatever I did was for your better future, or we can say whatever I did it for your better future. मैंने एक वीडियो कहा था शूट करने को, तुमने 3 कर दिया। I told you to shoot 1 video but you shot 3. I told you to shoot 1 video but you shot 3. मुझे पता है वीडियो पाने के लिए क्या करना है। I know what to do to get the video. I know what to do to get the video. जैसे कभी कोई कहता है ना कि अब मैं वीडियो आपको सेंड नहीं करूँगा, तो I know what to do to get the video. तुम इस बारे में मत सोचो, मैं उन्हें देख लूँगा। You don't worry about this. तुम इस बारे में चिंता मत करो, मैं उनसे निपट लूँगा, देख लूँगा। I'll deal with them. I'll deal with them. यहाँ कोई टीचर नहीं है, तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा। There is no teacher here. You have to learn yourself. There is no teacher here. You have to learn yourself. मेरा मुंह बंद मत करो, इसका मतलब मेरा मुंह ढको मत। Don't cover my mouth. Don't cover my mouth. मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी, मुझे यहीं रहने का मन है। I loved this place. I feel like staying here. I loved this place. I feel like staying here. ऐसे रहोगे तो क्या हासिल कर पाओगे तुम? You won't achieve anything if you stay like this. अगर तुम इसी तरह रहोगे तो तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। You won't achieve anything if you stay like this. तुम्हें अच्छी तरह पता है मुझे क्या पसंद है और क्या चाहिए। You know very well what I like and what I want. You know very well what I like and what I want. मैं आसानी से दूसरों से नहीं हारता। I don't lose easily from others. I don't lose easily from others. वो हमेशा ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश करता है। He always tries to act over smart. He always tries to act over smart. उसे ले जाओ। Take him away. Take him away. कौन लाया इसे? Who brought it? Who brought it? आप लोग इतने चुपचाप क्यों बैठे हैं? Why are you guys sitting so quietly? Why are you guys sitting so quietly? घर में चुपचाप नहीं बैठ सकते हम। Can't we sit quietly at home? क्या हम घर पर चुपचाप नहीं बैठ सकते? Can't we sit quietly at home? मम्मी मुंह धोने बाथरूम जा रही हैं। मम्मी is going to the bathroom to wash her face. मम्मी is going to the bathroom to wash her face. नेक्स्ट सेंटेंसेस। बाथरूम जा रही हो क्या? आर यू गोइंग टू द बाथरूम? आर यू गोइंग टू द बाथरूम? मुंह धोने जा रही हो? आर यू गोइंग टू वॉश योर फेस? आर यू गोइंग टू वॉश योर फेस? मैंने सुना है ज्यादा मुंह धोने से त्वचा स्किन खराब हो जाती है। आई हैव हर्ड दैट वॉशिंग द फेस टू मच स्पॉइल्स द स्किन। I have heard that मैंने सुना है कि washing the face too much spoils the skin. ज़्यादा चेहरा धोने से स्किन खराब हो जाती है। कहाँ सुना आपने? Where did you hear that? Where did you hear that? मीना ऐसा कह रही थी। मीना was saying so. मीना या मिनी ऐसा कह रही थी, कोई भी नाम, तो मिनी was saying so. मैंने नहीं कहा था, मैंने तो रेडियो पर सुना था। I didn't say so. मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने तो रेडियो पर सुना था। I heard it on the radio. I heard it on the radio. कहा किसने था लाने को? Who asked you to get it? Who asked you to get it? मैं नहीं पीने वाली इसे, इसमें मलाई है। जैसे दूध के बारे में मैं नहीं पीने वाली इसे, इसमें तो मलाई है। I'm not going to drink this. There is cream in it.
आई एम नॉट गोइंग टू ड्रिंक दिस, देयर इज क्रीम इन इट। हाथ नीचे रखो, कीप योर हैंड डाउन, कीप योर हैंड डाउन। सुबह सुबह लड़ो मत, स्टॉप फाइटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, स्टॉप फाइटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम्हारे मरने से तुम्हें क्या मिलेगा? वॉट विल यू गेन बाय डाइंग। जब कोई सुसाइड करना चाहता है, मरना चाहता है, तो हम कहते हैं ना कि तुम्हारे मर जाने से तुम्हें क्या मिल जाएगा, वॉट विल यू गेन बाय डाइंग। ये कोई वक्त है इसे डांटने का? इज दिस द टाइम टू स्कोल्ड हर, इज दिस द टाइम टू स्कोल्ड हर। किसी को तो बोलना ही पड़ेगा। somebody has to speak, somebody has to speak। कुछ पैसे भेज दो उन्हें इलाज के लिए, send him some money for his treatment, send him some money for his treatment।